everyone will be fine. So today we will do exercise of chapter 4, what books and burials tell us of history. Okay, so let's start from question number 1. Match the column. Here you see match the column are given and answer also given. Sukt means well said. Chariots used in battles. Yajna sacrifice. Yajna sacrifice. ओके यज्ञ को कहते हैं हम, है ना. दास को हम स्लेव कहते हैं. ओके मेगालिथ मीन्स स्टोन बोल्डर्स. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Complete the sentences. Here some sentences are given, so we will complete these sentences. Okay, so here you see also answers are given. Slaves were used for work. B. Megaliths are found in South India, Northeast, East and Kashmir. Okay. C. Stone circles or boulders on the surface were used to indicate the exact place for burial. Okay. स्टोन सर्कल और बोल्डर्स जो हैं, है ना, बोल्डर्स वाला जो सरफेस है वो क्या इंडिकेट करता है कि वहां पर बरियल है और वो एग्जैक्ट प्लेस है. ओके. डी. पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर burying the other member of the same family at the same place. ओके. पोर्ट होल किस लिए यूज किया जाता था कि एक ही प्लेस पर बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का अलग अलग समय में, है ना, दफन किया जा सके वहां पर. ठीक है, इसलिए पोर्ट होल का यूज किया जाता था. ई. पीपल एट इनाम गांव एट wheat, rice, pulses, barley, sesame, peas, etc. Okay. Now question number 3. In what ways are the books we read today different from the ऋग्वेद? अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो ऋग्वेद से कैसे डिफरेंट है? So the main difference between the two is nowadays books are written and read instead. ऋग्वेद was memorized by the students. आज के समय में जो बुक्स हैं वो लिखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, है ना, और ऋग्वेद जो थी वो याद की जाती थी स्टूडेंट्स के द्वारा. ओके, तो ये डिफरेंस है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. What kind of evidence from burials do archaeologists use to find out whether there were social differences amongst those who were buried? सोशल डिफरेंस की बात की जा रही है कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है बरियल्स से, कब्रों के अंदर से कैसे एविडेंस मिले हैं और उन जो डेड बॉडीज से क्या पता चला कि वो उनमें क्या सोशल डिफरेंसेस हैं. ठीक है. सो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड दैट इन सम बरियल्स द skeleton found were buried with lots of pots and some with less pots. They concluded that people were buried according to the status. तो यहाँ सोशल डिफरेंस क्या समझ में आया कि लोग जो होते थे वो सोशल स्टेटस, है ना, जो उनका स्टेटस होता था उसके अकॉर्डिंग दफन करते थे और दफन करने के साथ साथ बहुत सी चीजें डालते थे. ठीक है, कि जैसे कुछ व्यक्तियों के बरियल से, है ना, कब्र से ज्यादा पॉट्स मिले हैं और कुछ के में कम मिले हैं. इसका मतलब जिनमें ज्यादा होते होंगे तो वो रिच पीपल रहे होंगे और जिनमें कम थे तो वो पुअर पीपल रहे होंगे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन व्हाट वेज do you think that the life of a raja was different from that of a das or dasi? राजा और दास दासी की लाइफ में क्या डिफरेंस था? तो द राजा वॉज ऑन द हाइएस्ट पोजिशन वाइल दासी वॉज ऑन द लोएस्ट पोजिशन. दास वॉज यूज एज स्लेव्स फॉर वर्क. स्लेव को ही हम दास कहते हैं, ना. They were treated as the property of owners. Actually, they were captured during wars and made slaves. है ना, जो व्यक्ति उनके यहाँ दास दासियों का काम करते थे तो वो वार के दौरान या युद्ध के दौरान उनको जीत लिया जाता था. ठीक है, वो सामने वाली पार्टी हार जाती थी तो उसके जितने लोग होते थे वो तो दास दासी बन जाते थे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Find out whether your school library has a collection of books on religion and list the names of 5 books from this collection. So answer here: Mahabharat, Ramayan, Quran, Bible, Guru Granth Sahib.
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बुक में दिया हुआ है, वो आप देखेंगे और खुद करेंगे। उसमें आपको पोयम लिखनी है, ठीक है, तो वो आप देखेंगे और करेंगे। Question number 8. In the Rig Veda, people were described in terms of the work they did and the languages they spoke. In the table below, fill in the names of 6 people you know, choosing 3 men and 3 women for each of them. Mention the work they do and the languages they speak. Would you like to add anything else to the description? आपको कोई 5 व्यक्तियों के नाम लिखना है जो अलग अलग लैंग्वेज वाले हों, है ना। 3 वुमेन्स लेना है, 3 मेंस लेना है, ओके, जिनको आप जानते हैं और उनकी लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा वर्क करते हैं, ठीक है, और कुछ अगर वो बोलते हैं तो वो भी लिखना है। तो यहाँ पर नीचे आंसर दिया हुआ है, तो ये हर बच्चे का अलग अलग आंसर यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये एक आंसर मैंने यहाँ लिखाया है। तो आपकी जान पहचान में जो हूँ उनका नाम लिख के, उनका रिलीजन लिखकर और उनका लैंग्वेज, सॉरी रिलीजन नहीं, लैंग्वेज लिखकर, और जो भी लैंग्वेज वो बोल सकते हैं और उनका वर्क आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आप करेंगे। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर 5।